मनोविकास स्टार्ट किया था, इट वाज इन 1997। गांव में क्या है, इंदिरा आवास योजना है या बहुत सारा घर के लिए हमें घर नहीं है तो घर चाहिए, तो कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी उस आवास योजना में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। Hello everyone, welcome back to our channel Health First Special. So today we are with Dr. Alok Kumar Bhuvan. He is a founder of Manovikas Charitable Trust. Dr. Alok is a world-renowned specialist in rehabilitation science and special education and founded the Manovikas Charitable Society in 1997. He has received invitation from prestigious organizations around the globe. As a founder of self-advocacy movement in India, Dr. Bhuvan is paving the way for people with IDD to pursue inclusive higher education and develop their skills. He has more than 30 years of experience. Dr. Alok has dedicated himself to rehabilitating persons with disability, from his research in India and Japan to his lectures at UNESCO HQ in Paris. Dr. Alok's work has gone on to change the lives of countless individuals living in poverty or excluded from society due to disabilities. A warm welcome to our channel, sir. Thank you. सभी को नमस्कार। So, अपने बारे में बताइए सर, क्या है अभी तक आपकी जर्नी यहाँ तक और कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंजेस फेस करे? Basically, we work for the people with intellectual and developmental disabilities. तो अगर मैं जर्नी के बारे में बात करूँ तो जब हमने मनोविकास स्टार्ट किया था, it was in 1997. Okay. So we were thinking about how the children can go from special school to the mainstream school. Those days there was no act or no provision to get them the admission into the mainstream school. तो फिर हम लोगों ने advocacy की with the government, and then in 2009 you have seen that the RTE Act, the Right to Education Act, was passed. So whole concept and then the whole advocacy, the materials was provided to the government to bring out the RTE Act, and then thereafter you can see the change in the country, how the children with disabilities are going into the mainstream schools. Whereas you can see that the another milestone, we have many milestones, but we can tell you the few that you have seen the 1995 PWD Act, the Person with Disability Act. So there was no provision for the people with intellectual and developmental disability to give them any kind of reservation in the job or either in the education. तो फिर हम लोग, क्योंकि सरकार के पास एक ऐसी पॉलिसी थी कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस तरह के लोग वो हायर सेकेंडरी से ऊपर नहीं जा सकते या सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर नहीं जा सकते, सो दे डजंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, और दिस वाज द सम काइंड ऑफ कंसेप्ट बिहाइंड द गवर्नमेंट, द सिस्टम. So then we started the first community college in the country, where we had shown to the government that these people, they can get the skills as well as also they can get the degree from the university. So they may require all kind of reservations like others. So in 2013 we had the convocation and we lobbied with the government, that we shown to the government, and then in 2016 the act was passed with 1% reservation. So there are so many milestones in the Manovikas, and we are excelling to that. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. सो RPWD की अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या है, मतलब क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता कि RPWD क्या है, क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं, क्या उसके प्रोविजंस हैं, वो हमारे पेरेंट्स को बताइए. RPWD Act is the Rights of Persons with Disability Act 2016, and this act is based on the UNCRPD. UNCRPD is the United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disability. It says the persons first, that we should not see that he is a disabled or something like that, and we should see he is Ram, Syam, Mohan, Ali. That recognition is very important, the number one. Number two, RPWD Act talks about the evolving capacity. If you give them the empower them or give them the training, they will empower their skills, and they will not remain whole life for the persons with disability. And it has also the significance of ICF, the International Classification of Functioning, Health and Disability.
So in all purview, I can say that the RPD Act has the very good tool where we recognize persons with disability as a human being, as a having their rights, having them some kind of the privilege where they can show their capacity. And in the RPD Act, there is something very good thing is that we have so many provisions, the provisions of education, provision of employment, provision of having the rights to live independently, then provisions for to show their capacity as a legal capacity, that they have the legal capacity. So in that RPD Act, we can say we have so many things that हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको कि हम लोग देखकर RPD एक्ट को अगर हम यूज़ करें अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। बहुत बढ़िया है ये चीज़। तो हाउ हैज़ द RPWD एक्ट इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंक्लूजन, और ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी या एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहें? RPD एक्ट में एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी है, बट उससे भी बहुत अच्छा चीज़ है रीजनेबल एकोमोडेशन के बारे में। रीजनेबल एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम एक्सेसिबिलिटी तो बना दिया, लेकिन मे बी वह उस लेवल की एक्सेसिबिलिटी जो है उस पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फिट नहीं हो। जैसे एग्जाम में हमने कहा कि ठीक है, इसको हमने राइटर दे दिया, मे बी दैट पर्सन डजंट रिक्वायर द राइटर, मे बी ही रिक्वायर्ड समथिंग एल्स, लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स। तो रीजनेबल एकोमोडेशन कहता है कि उस व्यक्ति की जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से देना है, लिस्ट से चूज़ नहीं करना है। ओके, तो अगर हम RPD एक्ट के बारे में एक्सेसिबिलिटी को और थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें, तो रीजनेबल एकोमोडेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ने में, एजुकेशन में, जॉब में, इन जनरल इन कम्युनिटी लिविंग में। दूसरी बात है, जहाँ तक कि अगर हम RPD एक्ट को एजुकेशन में देखें, तो हर किसी भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ, चाहे वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या हायर एजुकेशन हो, वहाँ पर भी हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी है, फिर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, RPD एक्ट का हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया या फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल में देखें, तो आप आज देखेंगे कि जो NCERT है, एज ए education provider, education authority in country, they have very good all the accessible materials for the persons with disability, children with disability. While as we can talk about the UGC, एजुकेशन में UGC के पास पूरा गाइडलाइन है, और वो पूरा अभी किसी को नहीं रोक सकता, कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हायर एजुकेशन में जाने के लिए नहीं रोक सकता, इवन कि दोज हु आर द इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इफ यू सी दैट चेंजेस आर कमिंग अप, maybe in coming years the whole changes, that the better changes you can see. बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो आपने बताया रीजनेबल अकोमोडेशन, ये वैलिड है, मतलब इस कानूनी वैलिड है। अगर कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वो बोले कि मुझे ये चाहिए था एग्जाम के समय में या स्कूल में या कॉलेज में, और वो मुझे नहीं मिला, ओके, तो इतना सा स्टेटमेंट, इतना ही छोटा सा स्टेटमेंट एक कानूनी रूप हो सकता है और उसको पूरा अधिकार मिल सकता है। ओके, मतलब पेरेंट्स इस पे आवाज उठा सकते हैं हमेशा कि रीजनेबल अकोमोडेशन दी जाए हमारे बच्चे को। हाँ, रीजनेबल अकोमोडेशन को समझना जरूरी है कि हम उस बच्चे की क्या नीड है, कैसे हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, सो दैट कैन बी गिवन टू द चिल्ड्रन। Okay. और ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आपकी लाइफ? सक्सेस स्टोरी, see there is many success stories. If you can say, I'll give you the before success story, I'll give you the some idea how the disability is perceived in the RPWD Act. ठीक है, एक तो सबसे बड़ा कंसेप्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का, दिव्यांगजन का। तो किसी को भी अगर कोई कमी है, जैसे मेरा आँख कमज़ोर है, तो हम भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, किसी भी तरीके की, कोई भी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से भी हो, तो कोई भी कमी वाले लोग, अगर उसको कोई अपने जीवन में कोई काम करने में कठिनाई हो दैनिक जीवन में, तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसकी डिसेबिलिटी को अगर हम नापें और वो 40% से ऊपर हो, तो उसको पूरी सुविधाएँ मिलेगी। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों को मिलेगी। और तीसरा एक है हाई सपोर्ट नीड। हाई सपोर्ट नीड का मतलब है कि किसी को मल्टीपल डिसेबिलिटी है, या उसकी जो डिसेबिलिटी है, मे बी उसका
जो नेचुरल क्लाइमेट है या फिर जहाँ पर उसका लिविंग कंडीशन है वो कुछ नहीं, सोशली वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी डिसेबिलिटी कम होने के बावजूद भी सीवियर है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है। या इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी सीवियरिटी ज़्यादा हो तो उन लोगों को भी पूरी सुविधाएं मिलती है, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। तो अगर आप देखें एक रिकॉग्निशन है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया, अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसको सपोर्ट दिया, अगर हाई सपोर्ट नीड है तो उसको ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो इस पूरे कानून में इस तरह का परव्यू बना हुआ है। और अगर मैं जस्ट बात करता हूँ हाई सपोर्ट नीड वाले के लिए, मैं आपने कहा कि कोई स्टोरी बताई, तो अगर हाई सपोर्ट नीड वाले के लिए हम बात करें तो आप अगर स्लम में जाते हैं या किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है, रिसोर्स का अभाव है, तो वहाँ पर खास करके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उसको पागल कहा जाता है या फिर वो घूमते फिरते रहते हैं इस तरह से। तो हम लोगों ने एक सेंटर बनाया था और वो स्लम में है, अभी भी वो सेंटर चलता 7-7 के नाम से। तो वहाँ पर जब वो एक हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे को लाया, इस एडल्ट्स को लाया गया, तो वो पहले पत्थर भर कर लाते थे कि जैसे उनको जैसा बिहेवियर था वैसा ही उस बिहेवियर के साथ वो आते थे सेंटर पे। तो सभी को अप्रीहेंशन होता था टीचर्स को कि कहीं ये पत्थर मार ना दे, कहीं ये गलत चीज़ ना कर दे। फिर धीरे 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 एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स WHO ने डिज़ाइन किया, और वह क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बेस्ड होता है कि जो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में है और लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है, उसको और कुछ नहीं कर सकते उसके साथ डॉक्टर, तो उसको खुशी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने भी उसी इंडेक्स को यहाँ पर यूज़ किया कि चलो कुछ नहीं करें तो हम इनको खुशी दे दें। जब हम उस इंडेक्स से आगे बढ़े, उसको उस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू किए, तो फिर वो बच्चा जो पत्थर ला रहा था वह एप्पल लेकर आना शुरू हुआ, जो अपने भी खाने लगा और टीचर को भी ऑफ़र करने लगा। कुछ दिन के बाद हमारे पास एक हेयर ड्रेसिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने वहाँ स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी हाइजीन कंडीशन सही नहीं थी। तो उससे क्या हुआ कि वो अपना खुद का हेयर ड्रेसिंग करने लगे, दूसरे का भी करने लगे। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि आप देखेंगे कि वो इतने ट्रेंड हो गए कि उसको कम्युनिटी में किसी छोटे से पार्लर में 4,000 रुपये की नौकरी भी मिल गई। सो हाउ वी अंडरस्टैंड द डिसेबिलिटी, आई टोल्ड यू द इवॉल्विंग कैपेसिटी, कि हम एक तो सोचते हैं कि ये हाई सपोर्ट नीड है, बहुत ही सीवियर है। इफ़ यू प्रोवाइड द फुल एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सिस्टम, तो फिर दैट they can avail all the facilities, they can get all the facilities and they can empower themselves. बहुत बढ़िया है कि उस बच्चे को आपने बहुत नीचे से एकदम ऊपर तक लेके गए। इट्स अमेजिंग। Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow. So next question for you is, what are some common misconception या myth about the disability rights and person with disability that you would like to address, and how can you promote a more inclusive and understanding society? जब हम दिव्यांगता अधिकार के बारे में बात करते हैं, डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो राइट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्या अधिकार हैं। वो जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम just because my experience is very much in the IDD, intellectual and developmental disability, I'll quote you the same thing. We have about 25 years of experience in dealing all such the issues in Manovikas. तो उसमें हम देखें कि they have evolved that much, they can speak up. Okay, so while we talk about the rights, the very first concept is हम अपनी बात, हम अपने मन का चॉइस, हम अपनी पसंद बता सकें। तो हमारे पास एक मेक माई चॉइस प्रोग्राम है, और वो कई सालों से हमने पूरे बच्चों को ट्रेंड किया उसमें। उससे क्या हुआ कि अब वो चॉइस बनाने, पसंद बनाने का प्रोग्राम नहीं रहा, अब वो अधिकार का प्रोग्राम हो गया। अब वो अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारी ज़िंदगी के लिए। तो अगर हम राइट्स को देखें तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें राइट्स के लिए अपॉर्चुनिटी देना कि वो बोल सके कि हमें ये ऐसा चीज़ हो। और दूसरी बात है कि जहाँ तक हम एक समाज जो है या परिवार जो है वह किसी व्यक्ति को थोड़ा कम आंक लेता है कि ये क्या बोलेगा, इसको क्या करना है, इससे क्या होने वाला है। तो ऐसी जो अवधारणाएं हैं, जो ऐसा कंसेप्शन है, वो नहीं होना चाहिए।
अगर हम उस कंसेप्शन को बदलें पूरे समाज में तो आप देखेंगे कि इस तरह का बदलाव आ सकता है कि अगर हम ये सोच लें कि ये बोल सकते हैं, ये अपनी बात रख सकते हैं, तो उससे ही पूरा दुनिया बदल सकता है। और राइट्स के बारे में हम बहुत बड़े बड़े राइट्स के बारे में बात ना करें कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, हम सिंपल एक खुश होने का ही राइट्स की बात कर लें कि घर में वो कैसे खुश हों। अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि उसको खाना प्रॉपर मिल जाए, हम एक सिंपल सी बात करें उसको मेडिकल सपोर्ट प्रॉपर मिल जाए, तो वो इस छोटे छोटे राइट्स से फिर हम धीरे धीरे बड़े राइट्स की ओर जा सकते हैं। Okay. So can you explain the role of RCI in supporting person with disabilities and what services or resources does RCI provide and how can individual assist them? बेसिकली RCI एक कानूनी प्रावधान है। मैं अगर सिंपल शब्दों में बताएं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, इसी प्रकार से रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है कि जो भी उस सेक्टर में, रिहैब के सेक्टर में या स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई कोर्स बनाए, मेन पावर डेवलपमेंट की बात करें कि हमें एक्सपर्ट चाहिए, एजुकेटर्स चाहिए, तो उसको रेगुलेट करने की बॉडी है RCI, और वो डिफरेंट कोर्सेज को बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कि रिसर्च के बारे में बात करना, डेवलपमेंट के बारे में बात करना, तो वो सब भी RCI का काम है और वो करते हैं। ओके सर, ओके। सो इंडिविजुअल कैसे असेस कर सकते हैं उनकी सर्विसेज को? ये इंडिविजुअल एक्सेस नहीं करने की बात है, ये RCI इसका सिस्टम समझना जरूरी है कि RCI पहले कोर्स डिज़ाइन करता है, फिर वो एक अपना एक्रीडेट करता है इंस्टीट्यूट को, और फिर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसके कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बेसिकली ये प्रोफेशनल्स के लिए, पेरेंट्स के पास अगर स्पेशल बच्चा है तो उसके लिए नहीं है। पहले कुछ समय पहले RCI में पेरेंट्स के लिए भी प्रोग्राम हुआ करता था, अभी तो नहीं है। लेकिन अगर हम पेरेंट्स के प्रोग्राम के बारे में बात करें या प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है कि वो एम्पावर करता है, एजुकेशन देता है RCI, कि किसी को भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो वो RCI के थ्रू वो कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर हम बात करें नेशनल ट्रस्ट की, तो नेशनल ट्रस्ट की क्या स्कीम्स हैं बच्चों के लिए? या बेसिकली नेशनल ट्रस्ट जो है वो एक प्रोविजन है, एक आंसर है पेरेंट्स के लिए कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। यस, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक पेरेंट का। तो जब अगर हम देखें तो नेशनल ट्रस्ट में एक लीगल गार्जियनशिप का प्रोविज़न है। सबसे पहला जो एक्ट का काम है कि बच्चे को, जो भी पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन 4 डिसेबिलिटी वाले लोगों को वो लीगल गार्जियनशिप देना। कि अगर अब लीगल गार्जियनशिप क्यों देंगे? अगर मान लीजिए कि जो बच्चे या जो व्यक्ति है वो अपना डिसीजन खुद ले लें तो वो खुद ले सकते हैं, लेकिन हम उनके डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं तो उसको सपोर्ट करें। दूसरा प्रोविज़न है कि लीगल जो पर्सन है या उनकी पर्सन्स की प्रॉपर्टी है वो उसको पूरी तरह से मिले, उसका हक उसको मिले, इसके लिए लीगल गार्जियन की ज़रूरत है। वैसे तो अगर हम अपने भारत में देखें तो भारत में 18 साल के बाद किसी को लीगल गार्जियन की ज़रूरत नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को किसी को नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है तो वहाँ पर हमें लीगल गार्जियन देना चाहिए। दूसरा जो स्कीम के बारे में बात है तो निरामया एक अच्छा स्कीम है जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अब कुछ प्रोविजंस, पहले बहुत सारे प्रोविजंस थे नेशनल ट्रस्ट में जिसमें डे केयर इंस्टीट्यूट चलता था या फिर रेजिडेंशियल केयर इंस्टीट्यूट चलते थे। तो अब धीरे धीरे वो प्रोविजंस मैं कहूँगा कम नहीं हुए हैं या बंद हुए हैं, ये तो सरकारी मामला है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कटौती हुई है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट चल भी रहे हैं जहाँ पर RCI की स्कीम्स को दिया जाए। ओके, तो ये पेरेंट्स अपना कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और टाइमली अगर वो इनरोल कर लें अपने बच्चे को कि अपना गार्जियन बना दें उसको, वो नहीं, टाइमली की बात नहीं है। एक तो सबसे पहले जब भी कोई बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है तो उसका नेचुरल पेरेंट उसका गार्जियन नहीं होता है। तो 18 साल के बाद अगर आप कहीं भी कोई प्रोविजंस, कोई बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको गार्जियनशिप की ज़रूरत हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि अगर इंडिविजुअल कहे कि नहीं मैं 18 साल का हो भी गया हूँ और मैं अपना खुद डिसीजन ले सकता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट मैटर ऑफ
कि उसको कंपलसरी है लेना, कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो कोई भी उसको कंपेल नहीं कर सकता है कि ये इसको हम गार्जियनशिप के बिना इसको प्रोविजंस नहीं देंगे। ये पूरी तरह से कानूनी में लिखा, कानून में है। और सेम चीज़ हम पहले तो सिर्फ नेशनल ट्रस्ट एक्ट आने से सिर्फ ऑटिज्म में, सेरेब्रल पॉल्सी में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए गार्जियनशिप की बात की गई थी। लेकिन जो आरपीडी एक्ट है 2016 का, उसमें अगर हम बातचीत करें तो उसमें भी लीगल गार्जियन का ये है, एक सिस्टम है, एक प्रोविज़न है। उस प्रोविज़न में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले लोग वो अपना लीगल गार्जियन बना सकते हैं। 21 डिसेबिलिटीज कवर कर रही हैं उसमें, हाँ। पूरी गार्जियनशिप। ओके सर। Many person with disability face challenges in assessing pension या फिर financial support, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पेंशन स्कीम्स के बारे में, और कैसे एक इंडिविजुअल ले सकता है उस स्कीम्स को? देखिए, डिसेबिलिटी जो है वो मैटर ऑफ स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है कि डिसेबिलिटी, जैसे शिक्षा जो है वो राज्य सरकार के परव्यू में आता है, और इसी तरह से डिसेबिलिटी भी जो है वो राज्य सरकार का मैटर है। तो अगर लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई कमी है उसमें, या कोई प्रोविजंस कोई उसको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, उसको किसी भी, आप चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में चले जाइए, एजुकेशन में चले जाइए, अपने राज्य सरकार के उस डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पर आप प्रोविजंस को देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है। जैसे मैं दिल्ली के बारे में बात करूँ तो दिल्ली में प्रोविजंस है पेंशन का, दिल्ली में प्रोविजंस है कि स्कॉलरशिप का, दिल्ली में प्रोविजंस है बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ का। तो आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट तक जाना है और उस कंसर्न या उस वेबसाइट तक जाना है जहाँ पर ये आप उसके लिए अपने नीड को बता सकें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो हर स्टेट में, पूरे भारत सरकार में डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, जो हर महीने मिलता है। तो किसी स्टेट में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, वो एज पर द स्टेट नॉर्म्स। दूसरा चीज़ है कि एजुकेशन फ्री है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे वो कॉलेज में जाएं या स्कूल में जाएं, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फ्री में एजुकेशन मिलेगा। ओके, या कम पैसे में मिलेगा, मतलब आम जितना फीस है उससे कम में मिलेगा, उसको रिबेट है, कॉन्सेशन है। उसके बाद अगर हम देखें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कोई एड्स एंड अप्लायंसेस खरीदना हो, जैसे मैंने रीजनेबल एकोमोडेशन के बारे में बात किया कि हमें कुछ अच्छा सा कोई बहुत टेक्निकल इक्विपमेंट खरीदना है जिससे हमारी डिसेबिलिटी कम हो, मिनिमाइज हो जाए, तो हम उसके लिए भी सरकार से पैसे मांग सकते हैं। आप देखे होंगे कोक्लियर इम्प्लांट है या बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पर बहुत लाखों में खर्च होते हैं, वहाँ भी सरकार लोगों को सपोर्ट करती है। उसके बाद अगर हम, वो रीजनेबल एकोमोडेशन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमें अगर दूसरे प्रोविजंस के साथ देखें कि जैसे गांव में क्या है, इंदिरा आवास योजना है, या बहुत सारा घर के लिए हमें घर नहीं है तो घर चाहिए, तो कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी उस आवास योजना में अपने आप को इनरोल कर सकता है, उसको घर मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकले हैं भारत सरकार के भी, तो उस हर स्कीम्स में, जैसे मनरेगा स्कीम्स है डेली वेजेस का, तो उसमें भी प्रोविजंस है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी को जॉब नहीं है तो उसमें वहाँ पर जाए और उसको सालों भर जॉब या उतने पैसे का उसको कंपनसेशन मिल सकता है। तो इसकी कोई एज लिमिट होती होगी? कोई एज लिमिट नहीं, जो भी उस स्कीम का या प्रोविजंस का जो एज क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होता है। कोई बहुत सारी स्कीम्स हैं इन लोगों जितने भी स्कीम्स हैं सरकार के, जितने भी जो भी स्कीम्स है उसमें 5% की भागीदारी, 5% का हिस्सा वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को है, तो वो कभी भी ले सकता है। कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं, कैसे पेंशन अप्लाई करें। और मुझे सर एक चीज बताइए कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर आपको पेंशन लेनी है तो सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं? मैंने आपको जो कहा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक पार्ट है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसमें 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो तभी कोई सरकार का प्रोविजंस मिलेगा, और हाई सपोर्ट नीड। तो अब अगर आपको कोई भी सरकारी स्कीम्स में कोई भी बेनिफिट्स चाहिए तो उसके लिए 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो वो डिसेबिलिटी कौन एसेस करेगा? अब तो कोई भी आ सकता है कि हमको भाई चलो दे दो, तो उसका मिसयूज़ ना हो और एक प्रॉपर व्यक्ति को, उनके नॉर्म प्रॉपर व्यक्ति को उसका सपोर्ट मिले। तो इसलिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और हर स्टेट में आपको
एक नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स है, कई हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर वो बच्चे जाएं और उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अब बहुत ही अच्छा है कि हम कहीं भी ना जाएं, एक UDID का पोर्टल है, उसमें अपने आप को इनरोल करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी डिसेबिलिटी के हिसाब से किस हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए। वो पूरा वहाँ पर नाम आ जाता है और आप उस हॉस्पिटल में जाइए, फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। इजीली बन जाएगा। इजीली बने या ना बने वो तो क्वेश्चन मार्क है, बट यस, प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके 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 सर। कॉमन बैरियर्स क्या आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो फेस करने पड़ते हैं उन्हें, कि असेसिंग द राइट्स, और या फिर कुछ भी बैरियर्स जो इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल्स पे रहते हैं उनके लाइफ में? कॉमन बैरियर तो एटीट्यूडनल बैरियर है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बहुत पहले मैं विदेश में एक व्यक्ति को मैंने चाहा, क्योंकि एज एन इंडियन क्या होता है कि हम हेल्प करना चाहते हैं ना, हाँ जी, मैंने चाहा कि उसको रोड क्रॉस करा दें। ओके तो जब मैं उसके पास गया तो ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन, तो मैं गया तो वो मुझे बहुत ही जोर से चिल्लाए कि मैंने तुमसे हेल्प मांगने तो नहीं आया था। अच्छा ठीक है, लेकिन एज एन माई एटीट्यूड और माई अपब्रिंगिंग की टू हेल्प समवन, आई जस्ट केम फॉरवर्ड कि हेल्प हिम। तो सबसे पहले जब भी हम अपना एटीट्यूड सुधारें कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो, उसको डिग्निटी है, उसको अपना उसका राइट्स है, ठीक है, तो हम उसकी डिग्निटी पे हनन ना करें। अगर वो कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली कर रहा है, कर पा रहा है, ओ अच्छा ही है तो नहीं, अच्छा ही नहीं, हम उसका अधिकार है। तो अभी क्या होता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं जा सकता, ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। आप परिवार में, पड़ोस में, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं कि नहीं कर सकता, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वह कर सकता है और उसको इंडिपेंडेंट होने का मौका देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आप एज ए बहुत ही बड़ा बैरियर देखेंगे, कहते हैं कि सरकार है, पैसे नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हमें देना चाहिए। डिसेबिलिटी और पॉवर्टी जो है वो बड़ा ही कोइंसिडेंस है, मतलब कि अगर डिसेबिलिटी है तो पॉवर्टी हो सकता है, और पॉवर्टी है तो डिसेबिलिटी भी हो सकता है। तो अगर हमें लगता है कि किसी को इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर खुल के हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसके डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ करने में, उसके लिविंग कंडीशन को सुधारने में, एजुकेशन में, वो हम कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा बैरियर लगता है कि हमें उस बैरियर को काम करना चाहिए, कि जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हो, जितने सिस्टम्स बने हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोविजंस बने हुए हैं, उस सिस्टम, उस प्रोविज़न में डिसेबिलिटी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर कि कोई भी व्यक्ति पर्सन विद डिसेबिलिटी वहाँ जा रहा है तो उसको बड़े आसानी से उसकी सुविधा उसको मिल जाए, फिर इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। अवेयरनेस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वही हम अपने चैनल से कर भी रहे हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट एडवाइस और गाइडेंस डू यू हैव फॉर person with disability and the families who may be navigating the complexities of disability rights and entitlements? How can they empower themselves and seek the support? बेसिकली अगर हम पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो पेरेंट्स का प्रॉब्लम है वो पॉज होते हैं। पॉज का मतलब होता है कि वो रुके हुए होते हैं, वो अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर उसको ये नहीं पता होता है कि हमारा ये जो बच्चा है इसको हम कहाँ ले जाएं। उसका एक रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये समझ में आता है कि ये डिसेबिलिटी जो अगर हमारे घर में हुआ है किसी को, तो वो चाहे तो भगवान की कोई कृपा रही होगी या कोई अलग सा नेगेटिविटी रहा होगा इस चीज़ के लिए। तो फिर क्या होता है कि अगर डिसेबिलिटी है तो 5 साल 10 साल उसको लग जाता है कि हम करें क्या, रुके रहते हैं, पॉज रहते हैं। और एक और बहुत बड़ा प्रोविज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर मान लो कि कोई गरीब है तो वो डिसेबिलिटी को लेकर एक दरवाजे से दूसरे जगह जाए उस बच्चे को, या फिर रोजी रोटी कमाने के लिए जाए, इसलिए भी वो उस पर्सन विद डिसेबिलिटी का ख्याल नहीं कर पाते हैं। तो जब भी पेरेंट्स हैं और हम जब पेरेंट्स के साथ डील करते हैं तो वो उसका जो पॉज है उसको हम सही करें। और एक रिग्रेशन होता है पेरेंट्स के मन में कि ये बच्चा मेरे ही घर में क्यों हुआ। तो जब एज ए प्रोफेशनल, एज ए कोई भी आप अपने चैनल के माध्यम से या जो भी आप अवेयरनेस करते हैं ना, तो वो रिग्रेशन से हम बाहर कैसे निकाल दें। जब आप उसको रिग्रेशन से बाहर निकालेंगे कि हाँ
ये कुछ कर सकता है, ये कुछ आगे बढ़ सकता है, ये आपके कारण से नहीं है, आप इसमें मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो वो जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, रिग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो पेरेंट्स उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और वो बच्चा बहुत आगे तक जाता है। मैंने तो देखा है कि कई पेरेंट्स रिग्रेशन में थे, रिग्रेशन से बाहर निकले, अब वो बच्चा कॉलेज जा रहा है, फिर उसके बाद वो अर्न कर रहा है। तो ये एक पूरा एक सर्कल है, उस सर्कल को हमें एड्रेस करना होगा। और जब भी हम पेरेंट्स को अगर बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पेरेंट्स का जो इमोशन है वो एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है। हम सिंपैथी या अलग तरीके से अगर देखें तो वो नहीं हो सकता है। पेरेंट्स के साथ एम्पैथी ज़रूरी है। जब भी आप पेरेंट्स के साथ डील करते हो तो आप उसकी भावना को समझने की कोशिश करो, ना कि तुमको करना है, ये करो, वो करो। भाई वो कितने रिग्रेशन में है, कितने पॉज में है, अगर हमने उसको समझा ही नहीं तो फिर वो हम कितना ही उसको एडवाइस दे दें तो वो नहीं चलेगा। तो हम उसके साथ एम्पैथेटिक होएं, उसकी भावना को समझ रहे हैं, पूरी तरह से फील कर रहे हैं, फिर हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। प्रॉपर्ली उनको साइको एजुकेट करें। साइको एजुकेट करना बहुत थोड़ा हम इतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते, बट हाँ एक एम्पैथेटिक भावना है कि हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हम आपकी बात को फील कर रहे हैं, दैट मच इज द इनफ। ओके। सो अभी कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुई है या इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने जो इन बच्चों के लिए या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हो, और हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेसी एंड इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया? देखिए हर दिन बदलता है सिनेरियो, और सरकार भी हर दिन कोई ना कोई नए पॉलिसीज प्रोविजंस लेकर आते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि नए सिनेरियो में, नए प्रोविजंस में, नए डेवलपमेंट में, तो एज सच जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो PWD एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। नए स्कीम्स आने चाहिए, जैसे मैंने रीजनेबल एकोमोडेशंस के बारे में बात किया, तो टेक्नोलॉजी का इनपुट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनपुट हो, या मशीन बेस्ड लर्निंग का इनपुट हो, जिससे कि हम बड़े अच्छे एकोमोडेशंस ला पाएँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं नए डेवलपमेंट के बारे में, तो नया डेवलपमेंट तब संभव है जब पेरेंट्स बताएंगे या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। अगर नया रिसर्च होता है, और आ भी रहे हैं, बड़े अच्छे रिसर्च भी अब इस सेक्टर में आ रहे हैं। और अभी देखिए सरकार ने यही किया कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस को, स्कीम्स को आसान बना दिया कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे उसको पा सकते हैं। ओके, दैट इज़ गुड, बट उसको पाने के लिए बहुत लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है, बहुत लोगों के पास कहाँ जाना है उसको लेने के लिए वो नहीं होता है। तो उसके लिए भी अगर हम थोड़ा सा अवेयर कर दें कि ठीक है ये सर्विसेज आपको यहाँ मिल जाएगा, तो वो भी ले सकते हैं। वही पेरेंट्स को वे आउट नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। Okay, sir. In conclusion, what message would you like to convey to our viewers, our parents, professionals? See, in conclusion, I can say I'll share you the only with my experience only. What I have seen in my journey, कि हम लोगों ने भी एज ए प्रोफेशनल उनसे ही सीखा है। हम अपने स्टूडेंट से ही सीखे हैं कि पहले स्कूल भेजे, फिर कॉलेज भेजे, फिर जॉब में गए। अब आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि वी हैव द 28 पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, दे आर एज ए मनभावन मित्र मंडली, एक सेल्फ एडवोकेसी का ग्रुप है। अब उस सेल्फ एडवोकेसी के ग्रुप में कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको कि कभी माँ बाप ने घर से बाहर नहीं जाने दिया, कि अकेले नहीं जा सकते हो। अब वो 28 बच्चे के ग्रुप में से 5 बच्चे 6 बच्चे लोग मिलके वो एडल्ट्स मिलकर वो चले जाते हैं घूमने के लिए। तो वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, दोस्त मिल गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि वो हमें गाइड करते हैं कि इजी कम्युनिकेशन कैसे हो। हमारे साथ अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ, तो पिक्टोरियल कैसे बनाओ, इजी रीड में कैसे बनाओ, तो उसमें वो हेल्प कर देते हैं। अब बहुतों को मैंने देखा है कि वो पॉलिसी और प्रोविजंस के बारे में सोचते हैं कि ये सरकार को ये लेटर लिखा जाए, ये पॉलिसी बदली जाए। तो आने वाला जो समय है, कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि आने वाला जो समय है वो सेल्फ एडवोकेट्स का है। तभी जितने सेल्फ एडवोकेट्स सामने आएंगे, जितने जिसको बेसिकली जिसको प्रॉब्लम है वो फील करेंगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, देन दे कैन टॉक टू द पॉलिसी मेकर्स। तो वो आने वाला समय ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी सारा सेल्फ एडवोकेट्स निकल के आने चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए। Thank you so much for your sharing your knowledge. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.